and today we are going to start our important topic inside a Hadoop and which is in demand. So hi everyone, my name is Pankaj. So we are going to discuss our important topic, that is Spark, which is in demand. So I'm hoping you can see my screen. So already we have created our cluster on GCP, and here you can see that we have a browser, we have a console where we have started our Hadoop services. Already we set up the Spark inside it. We can see that ls command. Okay, I don't have Spark. So first, what before going to start topic of Spark, so we are going to set up a Spark on our machine. So we can check Spark hyphen shell. So command not found. So we don't have a Spark. So now first I'm gonna tell you how we can set up a standalone or a single node Spark cluster on our Hadoop environment. So very easy process. So you need a Spark down package. So you can download Spark download Apache open source community, from where you can download your Spark package. Here you can see that right now it is available 3.12, 2.48, 3.02. Okay, so these are the Spark version, and parallelly here you can see. So if you want to older version, so there is a archive release, Spark release archive. If you want to click on these links, so here you can see that from starting Spark version. Okay, so try to find out the difference between what is the difference between Spark 1 and Spark 2 and Spark 3. That is very important. So I would like to suggest you can start from Spark 2.3. So it is a stable version. You can also go through a Spark 3.0. It's up to you. I don't have a problem. So if you want to go on latest version Spark 3, so you can see the lot of tar packages over here. So here you have 2214 package. Like in corresponding, you can see the Hadoop 3.2 is needed, and we set up Hadoop version. What is the Hadoop version for us? So Hadoop version is 2.84. So try to download the two. So package everything is comparable. So here I'm gonna download this one, like Spark 2.3 bin Hadoop 2.73 package. So you just right click on this link and open a like copy a link address, and then there is a wget command. Through wget command you can download this package. Control shift V. So I'm trying to download this package. It will take us some time. So Spark is a nowadays it is in demand because through Spark you can achieve lot of things. We will discuss how what is the difference between Spark and MapReduce. How Spark almost remove MapReduce from market. So we downloaded the Spark package. So we have Spark packages. Okay, so now we are untar this one, tar hyphen xvf command, through which we can untar our Spark package. So we can see ls. So now we have a untar package of Spark. We are going to rename it. Okay. So then there is a move command through which we can rename. So I'm giving a simple name like Spark. I'm giving a simple name. Okay. So I have renamed it and its name is Spark. Okay. So now we are going to set up a home directory. So this is for Spark, like home Vijay Lakshmi. I have a Spark, and this is my park till giving a path of. So I'm copying this thing. So I'm opening my environment file vi.basrc. So it's a very easy process. If you want to install Spark on your on a window machine, you can also do on a window machine. On a window machine, it is also a easy task, not a big deal.
Okay, so this is I have installed. Whenever we do any changes, so try to do a show best. I'll see whatever be the changes you done. So now we can check spark.shell. So inside a MapReduce, we can use Java, Python, but inside a Spark, we can use Scala also. So here, if I'm typing a Spark minus shell, so you can get a Scala interactive mode. Even you can do, if you are good in a Python, not you are not aware about a Scala language, so you can do your activity with Python also. Then there is a PySpark is available. So nowadays I'm also working on a PySpark because I'm performing. So here we are getting some error. So we need to install the Python. So sudo apt hyphen get install. I'm gonna install the Python. So now again I'm typing a PySpark. So now we have a PySpark environment. So if you are good on a Python, you can write your application on a Python language. So Python is very simple language like 61 plus 78. It will give you output. It's very easy language, yeah. Not an issue. All of Python. Okay. So this is our PySpark. And if you are good on a Java, so you can write your Java code. So it's up to you. You can pick a language. So this is what we have set up our Spark environment in our Hadoop environment over a Hadoop environment. So let's get start this Spark topic. It is very important. Don't miss any session because Spark is very important. So we will discuss and cover lot of task and project. We will cover lot of topic and task on it. So I'm gonna share this screen. So I'm hoping you can see my screen. So already, Simran, I'll just introduce myself. My name is Pankaj. For everyone or others know very well. So my name is Pankaj, and I'm a data analyst. Over a 6+ experience in big data and 4+ year experience in Spark. I have done electrical engineering and working experience on different domain like healthcare, hospitality, bank, e-commerce, retail. What I below I have a Facebook ID and LinkedIn ID. You can connect with me. What I have learned, it's all about the data. Okay. So Okay, emergence of Apache Spark. So before going to discuss start this topic, if anyone having any concerns, so please let me know. Okay, good. So guys, all we know that is 2020 the worst year ever for all of us. Coronavirus pandemic or COVID-19. So you know very well, this due to which we are facing a lot of problems. So there are plenty of lives gone, plenty of jobs gone. So there are crises, we can say that. The world biggest lockdown. Not India is impacted, all over countries impacted this coronavirus. Migrant crisis. There are a lot of people moving here and there. Some are stay there and facing problem, crisis, financial problem, everything. Millions of death, more than plus 25 millions job losses all over the world. Economic down, every country economic down. So we can say that difficult year, and even 2021 is also a difficult year. So we are hoping everything will fine soon. So in 2020, big data and Spark in demand. Why? Because in you know very well in USA there is a healthcare market. So US health policy, everything is compulsory over there. So there are a lot of data is generated during the time of COVID. There are a lot of demand in a market, and we need to process these huge amount of data. So generally, my company is also working on this US healthcare data, and we generally figure out the finding out the disease SCCs. These are the disease codes. We generally do an analysis on it. And then Netflix, Amazon in a demand when when children, student, everyone at home, so they are doing like watching Netflix, Amazon. So there are a lot of real time streaming is going on due to which there is a demand of a Spark, because inside a Spark, because in a Hadoop MapReduce we have only for batch processing. Like
we can only work on historical data or a batch data, but inside a Spark we can work on both type of data, whether it is a historical or a real time data. So that's why it is in demand. Excuse me. Then e-commerce sector is also flourished these times. So people doing online shopping and purchasing whatever they are, exploring site because they are free. They don't at a home. Mostly people explore the things on Amazon. There are a lot of websites through which we can do a shopping, Flipkart, everything. So people are trying to exploring. So all from all of these, they are just collecting information of person, like what is session ID, and which page customer is liking, which product the customer is interested. So they are collecting these data and doing analysis through this Spark and all that. Online teaching tool, Zoom, Skype. Now every day, everyone now started teaching student on a Zoom meeting or a team or a Skype. So they are trying to use this online teaching tool. And then telecom sector is also in demand because high demand of data, high demand of internet speed during the this big data time. So this is overall, this is if we can see other side of, there is a disadvantage, there are many losses, job work is lost. So that's why I'm telling you, people start start learning a new technology. Otherwise you will suffer in the future, because technology nowadays is upgrading, so they are reducing humans from machinery part and all that. So try to learn new technology as soon as possible, because jo older technology, nobody is interested on older technology. That's why there are many jobs is lost during a pandemic and all that. So impact of big data card during the time of the COVID-19. So this is a thing everywhere, coronavirus impact. So सारी country इनसे impact हो रही है. So big data fight against COVID-19. So पूरा का पूरा big data is acting as asset, helping forecast and understand the impact of the coronavirus. ये जो दवाइयाँ भी बनाई गई हैं, ये जो कोविशील्ड और ये क्या बोलते हैं, कोविन है, ये सारी की सारी, इसमें भी बिग डेटा का बहुत अच्छा इम्पैक्ट रोल हुआ है. अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ द कोरोना, इट्स बीइंग यूज्ड बाय द हेल्थ केयर वर्कर, साइंटिस्ट and epidemiologist and policy maker to aggregate and synthesize the data regularly scale. So यहाँ पे आप देख रहे होगे, below listed are the ways big data in storing and extending valuable information during the pandemic. सारा का सारा है. So I'm not wasting my time on this thing. So big data tools are now making it easy aggregate synthesize of the data. It was not it acting resourcefully in studying the metrics about the population movement across the region, listing health protocol, talk on the public compliances, check the frequency of the people with higher rate of temperature with temperature scanner. Health related data is pulled from the trusted bodies such as US Center of Disease Control and Prevention, World Health Organization, giving the information on the number of confirmed cases. आते नहीं थे, हम लोग देते थे कि कितने कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं वर्ल्ड वाइड, इंडिया में कितने बढ़ रहे हैं, किस स्टेट में कितने बढ़ रहे हैं. सो बहुत सारी डिवाइसेस थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, IoT, ये सब पिक्चर में आए, जिसके थ्रू हम सारा डेटा कलेक्ट कर रहे थे, वेदर इट इज स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड. So अगर बात करें what is Apache Spark, it is an heart and open source community. Initially open source in 2012 and followed by its first stable release 2 years later. Apache Spark quickly become a prominent player in the big data space. So since then, its adoption by big data companies has been on the rise at an eye-catching rate. So recent survey and forecast of technology adoption have consistently suggested that Apache Spark is being embraced at the rate that outperforms other big data frameworks. Like अगर बात करें जो other frameworks थे big data के, उनके comparison में ये कुछ ज़्यादा ही मतलब fast processing, क्योंकि रीजन क्या है, ये इन मेमोरी प्रोसेसिंग करता है. वी विल डिस्कस like what is in memory.
and how it is like faster as compared to other frameworks like MapReduce, here Pig, Hive, other tools. So we will discuss. सो वाई स्पार्क इज पॉपुलर, रीजन क्या था स्पार्क का पॉपुलर होने का? सबसे पहला रीजन था इन मेमोरी प्रोसेसिंग. व्हाट डू मीन बाय इन मेमोरी प्रोसेसिंग? ये बेसिकली रैम पे काम करता था. अगर आपकी बात करें, सबसे पहला जो होता था आरडीबीएमएस होते थे वो नेटवर्क में काम करते थे. उनका मोस्टली काम नेटवर्क में होता था, डेटा को ट्रांसफर करना ओवर द नेटवर्क. बट जब हडूप आया, हडूप डिस्क में काम करने लग गया. तो मैप रिड्यूस का आपने जो वर्क फ्लो देखा था उसमें बहुत सारे मैंने मैपर्स, बहुत सारे फेजेस बताए थे. हर फेज प्रोसेस करने के बाद अपना इंटरमीडिएट डेटा अपने उसी मशीन में डिस्क में सेव करता है. फिर अगर दूसरे फेज को रीड करना होता है तो उस डिस्क से डेटा को उठाता है और फिर प्रोसेस करता है अगेन अपने. तो इसमें क्या हो रहा था कि मैप रिड्यूस वाले प्रोसेस में बार बार प्रोसेसिंग, जो इंटरमीडिएट रिजल्ट था वो हम लोगों को डिस्क में राइट करना पड़ रहा था, रीड करना पड़ रहा था. तो इससे ज्यादा ना बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम थी. फिर स्पार्क आया. स्पार्क पूरा मेमोरी में काम करता है, रैम सब कुछ चाहिए होता है. तो अगर स्पार्क के बेनिफिट भी हैं, सो व्हाट काइंड ऑफ बेनिफिट? लाइक it will provide a fast processing in terms like if MapReduce process a 1 terabyte of data in a 10 hours, Spark doing same thing within a less than a 1 hour, it process the 1 terabyte of data. So you can see that Spark is 100 times faster than MapReduce when working on a memory. जब रैम पे काम करता है ना तो Spark 100 times faster than a MapReduce. When it work on a disk, so it is still 10 times faster than the MapReduce. सो रीजन क्या है इसका? तो एक अपना फ्रेमवर्क डिजाइन किया है. इसके जो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन है सारा डेटा रैम पे रखता है, जो भी इंटरमीडिएट रिजल्ट होते हैं, जिससे कि दूसरा फेज है उसको क्विकली अडॉप्ट कर पाए. और भी फेजेस हैं, जैसे मैप रिड्यूस में हम लोग मैपर फेज एक बार एग्जीक्यूट हो गया तो हम उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पे जो फेज अगर यूज हो गया तो जरूरी नहीं है हम उसको दोबारा भी यूज कर सकते हैं. सो बहुत सारे बेनिफिट थे जो स्पार्क के कंपैरिजन में, मतलब मैप रिड्यूस के कंपैरिजन में स्पार्क के. तो वन ऑफ देम इज इन मेमोरी प्रोसेसिंग, यानी सारा काम रैम पे होता है इनका. एक बार डेटा तुमने डिस्क से रीड कर लिया तो सारी प्रोसेसिंग रैम पे होगी. एट द एंड जब आप डेटा राइट करने जाओगे तभी डिस्क में सेव होगा. सो देन BI OLAP एट स्केल विद स्पीड, मतलब ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग और BI बिजनेस इंटेलिजेंस के लिए बहुत ज्यादा यूज हो रहा था. मतलब फास्ट प्रोसेसिंग, फास्ट रिजल्ट मिल रहे हैं आपको, आप कम काम कर सकते हो. इम्यूटेबल डेटा विद फंक्शनल प्रोग्रामिंग. व्हाट डू यू मीन बाय इम्यूटेबल? एनीवन? Which will not Here the value be cannot be changed. Exactly. Exactly. All are correct. Immutable, which we cannot change. We cannot change whether it is a data, a variable, whatever you can say. स्पार्क में इम्यूटेबिलिटी का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है. अभी हम जब स्पार्क में आरडीडीज पढ़ने जाएंगे तो आपकी आरडीडीज जो होती है वो इम्यूटेबल होती है. तो जनरली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंटरव्यू आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है आरडीडी इम्यूटेबल क्यों है, मतलब क्यों आरडीडी इम्यूटेबल है और इम्यूटेबल से आप क्या अचीव कर सकते हो. तो इम्यूटेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया ना कि आप हर फेज को दोबारा यूज कर सकते हो. अगर मैपर फेज एक बार लॉन्च हो गया तो आप उसको दोबारा यूज कर सकते हो. इसमें क्या होता है, आरडीडीज में ऑपरेशंस होते हैं. तो आरडीडी में जब भी आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हो तो एक नई आरडीडी जनरेट होती है. वो पुरानी आरडीडी को मॉडिफाई ये सब नहीं करता है, एक नई आरडीडी जनरेट करता है. सो इससे क्या होता है कि इन केस अगर दोबारा आपको वो आरडीडी को यूज करना है या अचीव करना है, मतलब दोबारा यूज करना है, तो आप उसको यूज कर सकते हो. और इसमें और भी फीचर्स हैं, लाइक इन केस अगर आपकी कोई आरडीडी लॉस हो जाती है तो आप उसको रिकवर कर सकते हो. तो इनका पूरा ग्राफ भी बना रहता है जिसे लीनेज ग्राफ कहा जाता है स्पार्क में, लीनेज ग्राफ थ्रू विच यू कैन कवर योर लॉस्ट आरडीडी. सो इम्यूटेबिलिटी से आप कंसिस्टेंसी अचीव कर सकते हो और आप दोबारा उसको यूज कर सकते हो. इसलिए स्पार्क में सारा काम इम्यूटेबल होता है. मतलब बोले तो डेटा फ्रेम, आरडीडी, डेटा सेट, जितने भी कॉन्सेप्ट है सब में इम्यूटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है. We can create a data frame RDD, but we cannot modify it once it created. Spark is lazy, ये भी एक कॉन्सेप्ट है. आपने मान लो एक बार कोई भी एप्लीकेशन आपने डिजाइन की स्पार्क में, जब तक आप उस पर कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करोगे. सो वी विल डिस्कस दिस ऑपरेशन एंड एक्शन. स्पार्क के दो फीचर्स हैं, सॉरी स्पार्क के दो ऑपरेशंस हैं, एक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन. We will discuss in detail कि what is action and what is your transformation. So Spark is lazy means जब तक आप
आप कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करते हो अपनी एप्लीकेशन में, तब तक आपका स्पार्क का एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं होगा, एक्चुअल प्रोसेसिंग नहीं होगी, उस टाइम तक डैग बनाता है। तो ये आर्किटेक्चर जब मैं डिस्कस करूंगा अभी थोड़ी देर में, तो देन यू विल गेट अ अंडरस्टैंडिंग व्हाट हाउ स्पार्क इज वर्किंग, कैसे काम कर रहा है, तो आपको आइडिया होगा। एंड देन देर इज अ क्लस्टर एंड प्रोग्रामिंग सपोर्ट, लाइक मैंने बताया कि स्पार्क का अपना खुद का क्लस्टर होता है। आप इसमें भी सारा कॉन्सेप्ट होता है, मास्टर स्लेव का कॉन्सेप्ट होता है, इसमें वर्कर नोड होती हैं स्लेव के जगह, उन वर्कर नोड्स में आपकी जॉब्स वॉब्स सारी चलती हैं। सो और प्रोग्रामिंग की आई एम सॉरी, अगर प्रोग्रामिंग की बात की जाए तो प्रोग्रामिंग आप चाहे पाइथन यूज कर लो, चाहे स्काला यूज कर लो, चाहे जावा यूज कर लो, चाहे स्पार्क सीक्वल यूज कर लो, सो आप कोई भी चीज प्रेफर कर सकते हो। सो प्रोग्रामिंग सपोर्ट है। देन पावर ऑफ सीक्वल्स एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन, यानी अभी मैं बात ही कर रहा था जैसे कि हाई में आप पूरा सीक्वल परफॉर्म करते हो, तो यहाँ पे आपको स्पार्क सीक्वल प्रोवाइड होता है। मतलब ये एक सिंगल पैकेज के अंदर ना सब कुछ है मेरे भाई लोगों। जैसे कि अगर हडूप में आपको प्रोसेसिंग करना है तो मैप रिड्यूस है, आपको कुछ सीक्वल परफॉर्म करना है देन आपको हाइव का पैकेट डाउनलोड करके उसको सेटअप करना है, उसको फिर मैनेज भी करना है। अगर आपको स्क्रिप्टिंग करनी है तो पिग है, अगर आपको स्ट्रीमिंग करनी है तो फ्लूम है, मतलब मशीन लर्निंग करनी है तो मोहत है। मतलब हडूप को कितने सारे टूल को मेंटेन करना पड़ता था, बट इनसाइड स्पार्क अगर ये पैकेज मैंने डाउनलोड कर लिया ना स्पार्क का, तो इसके अंदर मुझको सब कुछ मिलेगा भाई। मेरे को सीक्वल करना है स्पार्क सीक्वल इज देयर, मेरे को रियल टाइम करना है स्पार्क स्ट्रीमिंग इज देयर, मेरे को बैच प्रोसेसिंग करना है स्पार्क कोर इज देयर, मुझको पाइथन के थ्रू करना है, मुझको मशीन लर्निंग करना है स्पार्क एमलेव इज देयर, मुझको ग्राफिक्स करना है तो स्पार्क ग्राफिक्स इज देयर। मतलब एक सिंगल पैकेज के अंदर आपको सब कुछ मिलेगा। तो स्पार्क पावरफुल टूल है जिसमें आपको सारे बेनिफिट मिलते हैं। यूजर डिफाइन फंक्शन, आप खुद के फंक्शन बना लो, इनके खुद के अपने हाई लेवल ऑपरेटर्स होते हैं, अप्रोक्स 80 to 19 हाई लेवल ऑपरेटर होते हैं जिनका आप यूज कर सकते हो, और आपको खुद के अगर यूजर डिफाइन फंक्शन बना सकते हो तो यू कैन। यूडीएफ का बहुत यूज होता है इसमें, आप देखोगे कि बहुत लोग ना अपनी यूडीएफ खुद की बनाते हैं और उसको करते हैं प्रोसेस। स्पार्क स्ट्रीमिंग, सो स्पार्क स्ट्रीमिंग जैसे मैंने बोला रियल टाइम काम कुछ भी करना है तो आप स्पार्क स्ट्रीमिंग इज देयर। विजुअलाइजेशन अगर कुछ भी करना है, डेटा को विजुअलाइज करना है, इजिली यहाँ पे हो जाता है। तो दीज आर द फीचर्स, दैट्स व्हाई स्पार्क इज पॉपुलर इन द मार्केट। अभी तो कुछ ही कंपनी मैंने यहाँ पे लिस्टेड किए, मतलब स्पार्क का मार्केट बहुत बड़ा है भाई। तुम स्पार्क लिखोगे ना पता नहीं क्या क्या खुल जाएगा, स्टैक ओवरफ्लो, दुनिया भर की चीज जहां से तुम आराम से डिबगिंग इजिली कर सकते हो स्पार्क में। स्पार्क की कम्युनिटी है वो बहुत ही बड़ी है, और साथ में बहुत सारी कंपनीज आज की डेट में स्पार्क यूज कर रही है, चाहे वो नासा क्यों ना हो। नासा भी आज की डेट में स्पार्क को यूज कर रही है, नेटफ्लिक्स, ट्विटर, सब जगह यार, अमेजोन वेब, हर जगह कहीं ना कहीं स्पार्क यूज ही हो रहा है, और आने वाले टाइम में बहुत एसेंशियल हो जाएगा। ये स्पार्क की कम्युनिटी है जो जो स्पार्क के फीचर प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे क्लाउडेरा, डेटाब्रिक्स, एमलैब, अमेजॉन वेब सर्विसेज ईमार के थ्रू, जीसीपी आपको दे रहा है डेटाप्रॉक के थ्रू, आईबीएम हो गया, ये उसकी पूरी कम्युनिटी है, मैपार हो गया, ये सब स्पार्क प्रोवाइड करते हैं आपको। और आप चाहो तो अपना खुद का स्पार्क का सेटअप कर लो, एडोबी तक देता है भाई। सो आप समझ सकते हो कि इसकी कम्युनिटी कितनी बड़ी है। अभी देखो यहाँ पे अगर तुम थोड़ा सा देख रहे हो, ये 2030 नवंबर 2013 का है, कैसे फ्लरिश हुआ अक्टूबर, अब का ग्राफ दिखाऊंगा तो पता नहीं कहाँ पे पहुंच चुका है। Introduction to Apache Spark. So let's discuss कि है क्या. It is the heart of the Apache. So Apache Spark is lightning fast cluster computing technology. Lightning fast cluster computing technology पूरा कंप्यूटिंग से है। स्पार्क के डिसएडवांटेज ही पता होने चाहिए आप लोगों को। स्पार्क का अपना कोई फाइल मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है भाई, ये दूसरों का यूज करता है। कोई आपसे पूछे स्पार्क का ड्रॉबैक क्या है तो आप बता सकते हो, इसका अपना कोई फाइल मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है। ये क्लस्टर कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी, फास्ट क्लस्टर कंप्यूटिंग, आपका डेटा बहुत तेजी से प्रोसेस करेगा। इनका अपना कोई फाइल सिस्टम नहीं है। आप सोच रहे होगे कि इनका अपना कुछ है, ये क्या करते हैं, हडूप से डेटा लेंगे, प्रोसेस करेंगे, हडूप में डाल देंगे। ये क्लाउड S3 से डेटा लेंगे, प्रोसेस करेंगे, S3 में डाल देंगे। ये हडूप से डेटा ले रहे हैं, हाइव में डाल देंगे। S3 से डेटा ले रहे हैं, रेडशिफ्ट में डाल देंगे। दीज आर द क्लाउड टूल आर हडूप टूल। तो इनका अपना खुद का वो नहीं है फाइल सिस्टम की ये स्टोर करेंगे, ये करेंगे, ये प्रोसेस करते हैं। डिजाइन फॉर फास्ट कंप्यूटेशन, मतलब बहुत फास्ट प्रोसेसिंग के लिए डिजाइन किया है। इट इज बेस्ड ऑन हडूप मैप रिड्यूस
and it extend the MapReduce model to efficiently use it for more types of computation, which include interactive queries. आपने देखा होगा MapReduce में आपको कोई interactive queries मिलती थी, मतलब आप वहाँ पे बाकायदा आपकी एप्लीकेशन थी, हम लोग रन किए थे बहुत सारी एप्लीकेशन MapReduce इन सब की। उनको क्या करता है ये उस कंपाइल करता है, जार बनाता है, फिर हम अपने हडूप के क्लस्टर में सबमिट करते हैं। हमें यहाँ पे स्पार्क में आप देख रहे हो कि हम स्पार्क शेल लिख रहे हैं या पाईस्पार्क लिख रहे हैं, तो लाइन बाय लाइन कोड करने का हमको मौका मिल रहा है। इंटरेक्टिव क्वेरीज है, मतलब जैसे हाई पिग में आपको इंटरेक्टिव मोड मिलता है, वैसे इसमें भी आपको इंटरेक्टिव मोड मिल रहा है काम करने के लिए। एंड स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग, स्ट्रीम प्रोसेसिंग कर सकते हो आप इसमें। द मेन फीचर ऑफ स्पार्क इज इट इन मेमोरी क्लस्टर कंप्यूटिंग, ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं, सारा काम रैम में हो रहा है बाय डिफॉल्ट, एंड दैट इंक्रीज द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ एन एप्लीकेशन, जो कि किसी भी एप्लीकेशन की स्पीड को बढ़ा देता है। So Spark is designed to cover a wide range of workloads such as batch application and iterative algorithm, interactive queries. Just wait here. So such as batch application, iterative algorithm, interactive query and streaming, ये सारी फीचर्स आपको प्रोवाइड कर रहा है Spark. Apart from supporting all these workload in a respective system, it reduce the management burden of the maintaining separate tool. जैसे Hadoop को separate tools वो करने होते थे, maintain करने होते थे अगर आपको उनको यूज करना होता, बट लेकिन inside a single package you can get everything. So हम इसका थोड़ा सा इंटरेक्टिव मोड देख लेते हैं, एक एप्लीकेशन रन करके देखते हैं। तब तक मैं थोड़ा सा ब्रेक ले लेता हूँ, कंटिन्यूसली बोल रहा हूँ मैं। ओके, सो जैसे कि हमने देखा था हमारे पास वर्ड काउंट का प्रोग्राम था, बहुत सारे प्रोग्राम भी रन किए थे, जार्स बनाई थी, एप्लीकेशंस को रन करके देखा था। तो अगर हम अपना एक सिंपल सा प्रोग्राम देखें वर्ड काउंट का, जो बेसिक प्रोग्राम होता है, सो ये हमारे एक प्रोग्राम था MapReduce का बेसिकली। यहाँ पे हमारे सारे पैकेजेस चलते थे, फिर मेन क्लास थी, मैपर क्लास थी। मैपर क्लास का काम क्या होता था, मतलब सारे का सारा मतलब ब्रेक करना, मतलब जो भी डेटा आ रहा है टेक्स्ट इनपुट फॉर्मेट में की वैल्यू पेयर में, तो वो वैल्यू वाले पार्ट को उठाता था और हर एक पार्ट को ब्रेक करता था, उसके करस्पॉन्डिंग वन इनिशियलाइज कर देता था। फिर रिड्यूसर का काम होता था, सारा एग्रीगेशन का काम होता था, इट विल एग्रीगेट सम अप एवरीथिंग, and then finally we have a main class. Inside a main class we call upper classes. फिर हम लोगों ने number of reducer, everything we have set, practically हम लोगों ने इसको बहुत अच्छे से देखा था। So this is what we have covered inside, और यही लैंग्वेज हमने पाइथन में देखी थी। पाइथन के थ्रू भी मैंने आप लोगों को दिखाया था कि हम लोग कैसे पाइथन के थ्रू कर रहे हैं। जस्ट वेट, सो ये पाइथन के थ्रू हम लोगों ने MapReduce का प्रोग्राम देखा था। ये हमारा मैपर था, सॉरी। सो ये पाइथन का कोड था। नॉर्मली हमने हर एक लाइन को रीड किया था, उसके आगे पीछे के ट्रेलिंग एंड वाइट स्पेस भी हैव रिड्यूस, एंड देन स्प्लिट किया था स्पेस के बेसिस में जो भी है, और हर वर्ड को मैपिंग की थी। तो मैपर का कोड था और ऐसे सिंपल सा था। मैपर का देखो पाइथन में कोड और लेस हो गया यहाँ पे, पहले वो वहां पे कितना बड़ा था। फिर ये मैपर रिड्यूसर का कोड था। सो रिड्यूसर के कोर्स में हम सारा का सारा काम एग्रीगेट करते थे और फाइनली सम अप ये सब करते थे, और फिर इसको रन करने का तरीका भी मैंने आपको दिखाया था, ये सारा रन करने का तरीका। सो नाउ सेम थिंग हम लोग अगर स्पार्क में करें, तो स्पार्क का एक और बेनिफिट है कि कंसाइज है, मतलब बोले तो लेस नंबर ऑफ लाइन। अगर आप MapReduce में 100 लाइंस का कोड लिख रहे हो, स्पार्क में आप 5 से 10 लाइन का कोड लिखो, यू विल गेट आउटपुट। तो बहुत ही कम लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ता है स्पार्क में एंड यू विल गेट आउटपुट। तो हम कोई भी मोड यूज कर सकते हैं हमारे पास, चाहे वो स्काला है, चाहे आप पाइथन है, किसी के भी थ्रू भी कोडिंग कर सकते हो। सो आई विल शो यू कि हमारे पास कुछ फाइल है कि नहीं। So we can check Hadoop. Inside a Hadoop, we can check the some directories. So we have some file inside a Hadoop, Hadoop fs-ls/input.
तो हमारे पास काफ़ी फाइलें हैं abc.txt, so we can read these files. तो हम कोई एक फाइल को प्रोसेस करके देखते हैं इंटरेक्टिव मोड में। चेक, ये हमारे पास एक टेक्स्ट फाइल पड़ी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो आई कैन यूज पाइथन। मैंने सुना है सब लोग पाइथन से कंफर्टेबल है। अगर आपको स्काला में करना है तो स्काला से भी कर सकते हैं। सो वी कैन स्टार्ट फ्रॉम पाइथन लाइक पाइस्पार्क। सो हम लोग अपने लोकल में भी देख लेते हैं फाइल। हमारे लोकल में भी abc.txt फाइल पड़ी हुई। ओके, सो फर्स्ट हम पहले एक बार लोकल से उठा के देखेंगे। तो वी हैव पाइस्पार्क। मैं अपना होम डायरेक्टरी भी देख लेता हूँ, pwd। ओके, सो पाइस्पार्क मोड पे हम लोग एक बार रन करके देखते हैं लाइन ऑफ कोड। सो आप यहाँ पे देख रहे हो स्पार्क का सेशन खुल गया। तो आई होप कि आप लोग को स्पार्क से अवेलेबल होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ पे एक चीज देख रहे हो, स्पार्क सेशन अवेलेबल है। ठीक है, एक बेसिक कोड स्पार्क का स्टार्ट होता है, स्पार्क सेशन मिलता है आपको। और स्पार्क सेशन के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये टॉपिक मैं लिखता भी जाता हूँ कि जब आप लोगों को पता होगा कि स्पार्क सेशन क्या होता है। तो एक्चुअली में स्पार्क सेशन आपका क्या होता है? तो स्पार्क सेशन में आपको जनरली एक सेशन मिलता है जिसमें आप अपना कोड कर सकते हो। हर एक एप्लीकेशन के लिए एक सेशन होता है स्पार्क सेशन। इसके अंदर भी आपके SC आते हैं, स्पार्क कॉन्टेक्स्ट आता है और आपका सीक्वल कॉन्टेक्स्ट आता है। स्पार्क 1 की बात करें तो स्पार्क सेशन नाम का कोई चीज नहीं होता था। स्पार्क कॉन्टेक्स्ट होता था, सीक्वल कॉन्टेक्स्ट होता था, हाइव कॉन्टेक्स्ट होता था। अब सब कुछ एक स्पार्क सेशन के अंदर आपको मिल जाएगा। और स्पार्क सेशन ये कैसे अवेलेबल है? स्पार्क नाम से अवेलेबल है। सो अगर मैं यहाँ लिखूं SC इक्वल टू स्पार्क डॉट तो ये मैंने स्पार्क कॉन्टेक्स्ट बना लिया। अभी मैं बताऊंगा स्पार्क कॉन्टेक्स्ट का क्या इंपॉर्टेंस है, हम क्यों कर रहे हैं, सब कुछ रीजन है। सो हम पहले इंटरेक्टिव मोड पे एक अपनी एप्लीकेशन रन करके देख लेते हैं। सो सबसे पहले क्या काम होगा, आपको भी पता, अगर आपको कोई डेटा पे प्रोसेस करना होगा तो फर्स्टली वी नीड टू रीड अ डेटा। सो हम डेटा रीड करेंगे। तो इसमें जैसे मैंने बताया ना, सारा कॉन्सेप्ट होता है इनपुट का मतलब सारा कॉन्सेप्ट उसमें होता है, RDDs का कॉन्सेप्ट होता है। ओके, सो अभी मैं थोड़ा सा ब्रेक ले रहा हूँ। सो हम लोग पहले पढ़ लेते हैं कि ये है क्या RDDs ये सब। सो अगर मैं स्पार्क के फीचर्स की बात करूं, सो अपाचे स्पार्क हैज अ फॉलोइंग फीचर लाइक स्पीड, सपोर्ट मल्टीपल लैंग्वेज एंड एडवांस एनालिटिक्स। अगर स्पीड की बात करें, जैसे मैंने बताया, स्पार्क हेल्प टू रन एन एप्लीकेशन इन हडूप क्लस्टर अप टू 100 टाइम फास्टर इन मेमोरी एंड 10 टाइम फास्टर व्हेन रनिंग ऑन डिस्क। एंड दिस इज पॉसिबल बाय रिड्यूसिंग नंबर ऑफ रीड राइट ऑपरेशन टू अ डिस्क, जो कि मैप रिड्यूस करता था। वहाँ बहुत सारे रीड राइट ऑपरेशन होते हैं ना, जैसे मैपर फेज चला, अब मैपर 10 मैपर बने तो 10 मैपर प्रोसेस करके अपने लोकल डिस्क में ही वो उसका आउटपुट सेव करते थे। अब सफल एंड शॉर्ट फेज को अगर वो डेटा चाहिए तो वो वहां से उठाएगा उनके इंटरमीडिएट डेटा को और फिर उनको पॉज करे। तो इतना टाइम नहीं था, ये रीड राइट ऑपरेशन बहुत कम हो गए थे। सारा डेटा इंटरमीडिएट आउटपुट रैम पे होता था और काम इजिली हो जाता था। तो इट स्टोर द इंटरमीडिएट प्रोसेसिंग डेटा इन अ मेमोरी। सपोर्ट मल्टीपल लैंग्वेज, स्पार्क प्रोवाइड अ बिल्ट इन APIs इन जावा, स्काला, आरा, पाइथन। तो आप कोई भी लैंग्वेज प्रेफर कर सकते हो। 80 हाई लेवल ऑपरेटर्स फॉर इंटरेक्टिव क्वेरी। आप इंटरेक्टिव क्वेरी करोगे तो आप 80 हाई लेवल ऑपरेटर्स अवेलेबल है। Advanced analytics like Spark not only support map and reduce, it also supports SQL query, streaming data, machine learning, and graph algorithms. What is Spark? So fast and expressive cluster computing system, compatible with Apache Hadoop. अगर यहाँ पे आप देखोगे रिच API है, जनरल एग्जीक्यूशन ग्राफ है,
और इन मेमोरी स्टोरेज है, इंटरेक्टिव सेल प्रोवाइड करवाता है, जो 10 टाइम फास्टर है डिस्क में, 100 टाइम फास्टर है जब मेमोरी में काम करता है। कोड देखो 2 to 5 टाइम्स कम से कम लेस हो जाता है कोड। तो की कंसेप्ट अगर बात करें, राइट अ प्रोग्राम इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा सेट। अब जैसे कि आपका डेटा हडूप में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उन पर ट्रांसफॉर्मेशन एक्शन परफॉर्म करवाना। तो अगर बात करें, यहाँ कंसेप्ट आता है आरडीडी, resilient distributed data set. So we will discuss in detail what is RDD. So here you can see that अभी RDD क्या है, आपका एक resilient distributed data set है। मतलब बोले तो resilient मतलब आपका fault tolerant है। resilient का मतलब fault tolerant, in case अगर आपकी RDD loss हो जाती है, we can recover ये RDD। डिस्ट्रीब्यूटेड है मतलब RDD डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा सेट पे भी डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा सेट पे काम करती है। मतलब आपका डेटा 10 मशीनों में है तो पैरेलली काम कर सकती है। डेटा सेट कोई भी हो, चाहे जेसन हो, चाहे CSV हो, कैसा भी। तो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट स्प्रेड अक्रॉस अ क्लस्टर स्टोर्ड इन अ RAM or on a disk, so built through a parallel transformation, so सारा पैरेलली करता है, ऑटोमेटिकली रीबिल्ड ऑन अ फेलियर। मैंने बताया ना आरडीडी मतलब खुद को रिकवर कर लेता है। इसमें आरडीडी लीनेज ग्राफ होता है, वी विल डिस्कस। सो ऑटोमेटिकली अगर फेल भी हो रही होगी आरडीडी, अपने आप को रिकवर कर लेती है। ऑपरेशन जो हम आरडीडी पे परफॉर्म करेंगे वो दो होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन और एक्शंस। सो ट्रांसफॉर्मेशन भी हमारे दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है वाइड ट्रांसफॉर्मेशन एंड नैरो ट्रांसफॉर्मेशन। वी विल डिस्कस later on in detail what is transformation and what is the types of transformation. अभी फिलहाल के लिए जो RDD है, सारा कंसेप्ट RDD में, मतलब ये कह सकते हो RDD is the fundamental data structure of Spark। मतलब स्पार्क में जो भी डेटा मैनेज हो रहा है, प्रोसेसिंग हो रही है, वो RDD की फॉर्म में हो रहा है। इवन जो डेटा फ्रेम, डेटा सेट भी बनते हैं ना, ऑन टॉप ऑफ RDD ही बनते हैं। मतलब सब कुछ RDD, इट इज अ फंडामेंटल डेटा स्ट्रक्चर ऑफ स्पार्क। और इस RDD पे जो हम ऑपरेशंस करते हैं वो हमारे या ट्रांसफॉर्मेशन और एक्शंस होते हैं। सो वर्किंग विद आरडीडी, अगर हम किसी आरडीडी के साथ काम कर रहे हैं तो कैसे काम हो रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हो, आपने कोई फाइल को रीड किया, दिख रही है, जैसे मैंने ऊपर फाइल को रीड कर रहा हूँ, कहीं पाथ में पड़ा है, तो मैं सेम चीज अगर परफॉर्म करूं, मान लो मैं एक आरडीडी बना रहा हूँ, इनपुट अंडरस्कोर आरडीडी या कुछ भी नाम लिख लो। मैंने स्पार्क कॉन्टेक्स्ट बनाया SC। स्पार्क कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, एंट्री पॉइंट होता है किसी भी स्पार्क एप्लीकेशन के लिए। आप अगर स्पार्क की जो फंक्शनैलिटी है, स्पार्क के जो फंक्शंस हैं, अगर आप उनको एक्सेस करना चाहते हो तो वो आप इसके थ्रू कर सकते हो। किसके थ्रू कर सकते हो, स्पार्क कॉन्टेक्स्ट के थ्रू कर सकते हो। तो ये एक एंट्री पॉइंट है। तो अब जैसे इसका एक फाइल है, टेक्स्ट फाइल है, जिसके थ्रू आप कोई भी फाइल रीड कर सकते हो। मतलब अब चाहे वो किसी भी लोकेशन में पड़ी हो, अभी जैसे कि मेरे पास इस वाली लोकेशन में पड़ी हुई है, होम लोकेशन में। तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल से, तो यहाँ पे मेरी abc.txt फाइल की बनी है, पड़ी है। तो मैं इसको रीड कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं एंटर मारूंगा तो ये एक RDD बनाएगा। देख रहे हो इनपुट, अगर इसको चेक करना हो तो टाइप से चेक कर सकते हो। तो आपने पाइथन में पढ़ा हुआ टाइप क्या जनरली करता है, ये बताता है आपका टाइप क्या है। आप देखोगे इसका टाइप क्या है, तो ये बताएगा ये आपका एक RDD है। तो ये आपको बता रहा है इनपुट टाइप आपका एक RDD है। सो ये हमने एक ट्रांसफॉर्मेशन किया, मतलब फाइल को रीड किया, उसने हमारी एक RDD क्रिएट की। समझ रहे हो। सो अगर मैं चाहूं, और जो एक्शन होता है, ये हमने एक ट्रांसफॉर्मेशन ही किया। टेक्स्ट फाइल आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन है जो आपकी RDD क्रिएट कर रहा है। सो स्पार्क में RDD को क्रिएट करने के 3 तरीके हैं। अगर वो बाद में भी डिस्कस करेंगे, अभी भी देख सकते हो। पहला तरीका होता है कि किसी एक्सटर्नल सोर्स से करो। जैसे हमारा डेटा लाइनक्स में पड़ा हुआ है abc.txt या हडूप में पड़ा है, तो ये एक्सटर्नल सोर्स है जहां से हम उनके पास से उनको रीड करके RDD क्रिएट कर रहे हैं। तो एक तरीका ये है RDD क्रिएट करने का। दूसरा तरीका है RDD पे अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन मारते हो तो वो आपकी एक और RDD बन जाएगा। मैंने जैसे बताया ना, RDD में मतलब स्पार्क में इम्यूटेबल का कॉन्सेप्ट है। यहाँ RDD को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। अगर आप अगर इस RDD में देखना चाहते हो कि भैया इस RDD में हुआ क्या है, अगर मान लो मैं कोई एक्शन परफॉर्म करना चाह रहा हूँ, कलेक्ट, कलेक्ट आपका एक एक्शन है, तो एक काम करता हूँ, मैं इसका डेटा स्टोर कर लेता हूँ, मान लो RS1 में स्टोर कर लेता हूँ।
और एंटर मारता हूं, तो कलेक्ट आपका एक एक्शन है। तो अगर मैं RS1 को प्रिंट कराऊं, मैं इसका टाइप देखूं कि RS1 है क्या, तो आपको खुद भी पता चलता रहेगा कि आप एक्शन मार रहे हो कि ट्रांसफॉर्मेशन मार रहे हो। तो ये बता रहा है आपका इसने एक लिस्ट जनरेट कर दी है, ना कि RDD बनाई है। तो अगर मैं इसको मैं प्रिंट करा सकता हूं, अगर मैं RS1 को एंटर मारूं तो ये बताएगा ये फाइल को रीड कर रहा है। देखो ये सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है इसमें कि क्या क्या लिखा हुआ है। और अगर मैं इनपुट RDD में कोई ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म कर रहा हूं, जैसे कि मैं चाह रहा हूं कि भैया ये फाइल तो मैंने रीड कर ली है, तो मैंने बताया ना कि RDD को क्रिएट करने का तरीका एक तो एक्सटर्नल सोर्स है, एक RDD पे अगर आप कोई ट्रांसफॉर्मेशन मारते हो तो एक नई RDD जनरेट होती है। जैसा कि हमें पता है कि RDD इम्यूटेबल होती है, कभी मॉडिफाई नहीं होती है, एक नई RDD जनरेट करता है। तो अगर मेरे को एक नई RDDs बनानी होगी तो हाउ कैन आई स्टार्ट की मैं चाहता हूँ ये डेटा स्प्लिट कर दूं। अभी आप देख रहे हो कि ये डेटा पूरा लिखा है कोहली कैप्टन इंडिया अंडर 19 टू विक्ट्री 2018। अब मैं इस डेटा को ब्रेक कर दूं तो इसमें फ्लैट मैप होता है। फ्लैट मैप आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो मैं क्या करता हूँ, स्प्लिट स्प्लिट अंडरस्कोर RDD, ये नाम कुछ भी रख लो यार, ये नाम आप कुछ भी रख सकते हो। अब किस पर मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, इनपुट अंडरस्कोर RDD, इसके अंदर मेरा डेटा पड़ा हुआ है, इस पर मैं अपना फ्लैट मैप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ। फ्लैट मैप, तो फ्लैट मैप का काम क्या होता है कि ये आपका डेटा स्प्लिट कर देगा। तो इसमें लेमडा फंक्शन का तरीका होता है, जैसे मैं कर रहा हूँ लाइन, इसमें हर एक लाइन मैं पिक करूँ और लाइन को मैं ब्रेक कर दूँ, लाइन डॉट स्प्लिट, स्प्लिट एक इनबिल्ट मेथड है। सो ये सारी पाइथन की कोडिंग है। और स्प्लिट किसके बेसिस में करूँ, मैं स्पेस के बेसिस में करूँ, जहां जहां मेरे को स्प्लिट स्पेस मिले वहां ब्रेक कर दे। तो अगर आप चेक करोगे मेरे को एक एरर दे रहा है, और सॉरी, तो यार ये जो मैंने साइन लगाया है ये ना वहां पे होता है, कहाँ पे होता है, आपका स्काला में होता है, यहाँ पे लेमडा फंक्शन काम करता है। लेमडा फंक्शन, लेमडा, गलत कर दिया, लेट मी चेक। ठीक है, तो यहाँ लेमडा फंक्शंस काम करते हैं। तो अगर मैं अगेन चेक करूंगा ना इसका टाइप स्प्लिट अंडरस्कोर RDD, तो ये भी मेरी एक RDD है। अगर मैं इसका टाइप करूंगा तो ये देखो ये मेरी है पाइपलाइन RDD। जब मैंने स्टार्टिंग में जब रीड किया था फर्स्ट टाइम इनपुट RDD, तो वो भी मेरी RDD थी, वो भी मेरी क्या थी, RDD थी। और इस बार इस पर मैंने एक ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म किया, कौन सा, फ्लैट मैप वाला, कि मैंने अपनी RDD पे फ्लैट मैप किया, उसमें मैंने लॉजिक लिखा हर एक लाइन को स्प्लिट कर दे स्पेस के बेसिस में। तो जब इसका चेक किया मैंने टाइप, तो मेरे को पता चला ये पाइपलाइन RDD बनी। अगर मैं इसका डेटा रीड करना चाहूँ तो मेरे को इस पर एक एक्शन बनाना होगा, स्प्लिट अंडरस्कोर RDD। मैं डायरेक्ट एक्शन भी लगा सकता हूँ, डॉट कलेक्ट लगाऊंगा तो आ जाएगा, लेकिन मैं पहले इसको स्टोर कर लेता हूँ। तो अगर मैं इस पर कलेक्ट करूंगा और मैं इसको स्टोर कर लेता हूँ रिजल्ट 2 में, ठीक है, और मैं इसका टाइप चेक करूं तो इसने क्या टाइप बनाया होगा। जब ऊपर वाले का चेक किया था टाइप तो उसने लिस्ट बनाई थी, जब उस पर एक्शन बनाया था। तो अगर मैं इसका टाइप करूंगा तो ये क्या बना रहा है, ये भी लिस्ट बना रहा है। तो अगर इसका रिजल्ट देखूंगा मैं, अब RS2 करूंगा तो ये मेरे को दिखा देगा, देखो अभी तक ये सब लाइन थी स्ट्रेट, देख रहे हो, मतलब कहीं अब इन ये आ जाएंगी सारी ब्रेक हो जाएंगे, देखो सारे वर्ड ब्रेक हो गए, स्प्लिटिंग कर दी इसने स्पेस के बेसिस पे। अभी सिर्फ मैंने 2 लाइन का कोड लिखा है, मैं साथ के साथ ये कोड, लाइन ऑफ कोड को कॉपी भी कर लेता हूँ, जिनसे आप लोगों को थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बनी रहेगी कि हम लोग कर क्या रहे हैं। तो सबसे पहला वाला कोड मेरा क्या काम कर रहा था, मैं इसको बड़ा करता हूँ। तो सबसे पहली वाली लाइन मेरी क्या कर रही थी, वो मेरा डेटा रीड कर रही थी लोकल फाइल से, है ना।
फिर मैंने दूसरा लाइन क्या किया था, दूसरी लाइन में मैंने क्या किया, अपना डेटा को स्प्लिट किया। मेन लाइन ऑफ कोड है मेरा। सो दूसरी लाइन मेरी क्या बेसिकली कर रही थी, वो ब्रेक कर रही थी, मतलब ये आरडीडी जनरेट हुई, इस आरडीडी पे हम फ्लैट मैप ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म कर रहे हैं और हमारा रिजल्ट सारा डेटा उसने स्प्लिट कर दिया। अब तीसरा फेज क्या होता है, मैपिंग का फेज होता है। मेरे पास स्प्लिटिंग हो गई है डेटा की, तो नाउ आई एम गोना डू सम मैपिंग ऑन इट। अब मेरे पास जो नई आरडीडी बनी है वो कौन सी बनी है, मेरे पास स्प्लिट आरडीडी। तो अब मैं क्या करूंगा, अपने डेटा की मैपिंग करूंगा, मैप डेटा। अब मैं अपने डेटा की मैपिंग करूंगा किस पर, ये वाली मेरी आरडीडी थी जिसमें मेरा सारा डेटा स्प्लिट हुआ, तो इसमें मैप ट्रांसफॉर्मेशन यूज करूंगा। तो इसमें क्या करूंगा, लैम्डा फंक्शन LAMBDA लैम्डा। तो इसमें देखो ये सब क्या है, एक वर्ड ही तो है, एक इंडिविजुअल वर्ड है सब। तो ये सब वर्ड, ये कुछ भी नाम रख लो यार, इसका नाम सीता रख लो, मेरे को कुछ नहीं, मैं तो बस मीनिंगफुल नाम रख रहा हूँ कि समझ में आए। तुम सीता रख लो, रावण रख लो, एक्स रख लो, वाई रख लो, डजंट मैटर, इट्स अप टू यू, ये मीनिंगफुल नाम होना चाहिए। अब मैंने क्या किया, हर एक वर्ड की मैपिंग कर दी वन। मैपर फेज है, लगाओ सेमीकोलन लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये मेरा मैप डेटा। तो अगर मैं इसका टाइप देखूंगा तो आपको पता चलेगा इसका टाइप क्या है, मैप अंडरस्कोर डेटा। इसका टाइप देखो तो इसका टाइप आएगा, सॉरी, you can see what is the type of it। इसका टाइप देखोगे ये भी पाइपलाइन आरडीडी, तो जनरली की वैल्यू पेयर की फॉर्म में है इसका डेटा। सो ये हमारा नेक्स्ट स्टेप था जिसमें हमने सारे डेटा की मैपिंग की। सो आई कैन राइट दिस लाइन ऑल्सो। और अगर मैं इसका आउटपुट देखना चाहूँ कि इसका आउटपुट जनरेट कैसा हुआ होगा, सो अगेन रिजल्ट 3 में रख लो डेटा अगर रखना चाहते हो, तो अगेन इस पे एक्शन परफॉर्म कर लो। तो अभी अब तक हमने एक ही एक्शन परफॉर्म किया बार बार, कौन सा, कलेक्ट। तो एक्शन आप समझ रहे होगे कि एक्शन क्या होता है जनरली। एक्शन क्या होता है, आपका आउटपुट जनरेट करता है, मतलब कंसोल में आउटपुट दिखा रहा है, देख रहे हो ये। और आरडीडी का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो एक नई आरडीडी बनाता है आपकी हर बार। मैप डेटा डॉट कलेक्ट। सो रिजल्ट 3 देखोगे तो सारे डेटा की मैपिंग हो गई होगी, देख रहे हो, हर एक वर्ड के साथ 1 1 आ गया होगा। ये इसके आगे यू आ रहा है, ये आप लोग पता करना ये यू होता क्या है। अगर आप लोगों ने डेटा टाइप्स अच्छे से पढ़े होंगे, ये यू का मतलब मेरे को आप बाद में बताना कि ये यू क्यों आ रहा है इसके आगे। तो डेटा टाइप्स का कंसेप्ट है। तो अब ये देखो सारे डेटा की हमने मैपिंग कर दी, 1 1 आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या बता रहे थे, तो सबसे पहले उसने फाइल रीड की तो आरडीडीज बनाया। तो ऐसे ही हम लोग इन पर ट्रांसफॉर्मेशन बना बना के हम बहुत सारे आरडीडीज बना रहे, देख रहे हो, हर एक ट्रांसफॉर्मेशन। अभी इसने फिल्टर लगाया, ऐसे हमने फ्लैट मैप मैप सब कुछ लगाया, तो हमारी बहुत सारी आरडीडी जनरेट होती है। जब भी हम ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं किसी आरडीडी पे, एक नई आरडीडी जनरेट होती है। अभी तक हमने दो टाइप देखे हैं आरडीडी को रीड करके। एक तो फर्स्ट टाइम जब किसी एक्सटर्नल सोर्स से डेटा रीड करता है तो आरडीडी बनाता है, और जब आरडीडी पे ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो एक नई आरडीडी बनती है। अगर हम उन पर एक्शन परफॉर्म करें तो वो हमें आउटपुट देगा। जब भी हम एक्शन परफॉर्म करते हैं तो वैल्यू देता है। जैसे मैंने काउंट, फर्स्ट, कलेक्ट, ये सब एक्शन है, तो ये बताते हैं कि कितने उसमें नंबर ऑफ लाइन है। अभी देखोगे जैसे कि मैं अभी तक कलेक्ट मार रहा हूं, अगर मैं अपनी आरडीडीज में वो मारता जाऊं, पहली आरडीडी थी मेरी इनपुट आरडीडी, इस पे अगर मैं काउंट परफॉर्म करूं तो ये बताएगा मेरी पहली आरडीडी में कितनी लाइंस थी। तो एक ही लाइंस बता रहा है इनपुट आरडीडी में। अब फिर क्योंकि सारा का सारा डेटा एक ही लाइन में आ गया था, फिर मेरी कौन सी आरडीडी थी, स्प्लिट आरडीडी थी, जिसमें मेरे सारा डेटा स्प्लिट हो गया था, स्प्लिट अंडरस्कोर आरडीडी। तो इसमें सारा मेरा डेटा स्प्लिट हो गया था। तो इसमें देखो काउंट कितना आ रहा है, लगभग 751 काउंट आ रहा है। फिर मेरी उसके बाद मैपिंग भी, सारे डेटा की मैपिंग की ना मैंने, तो मैप डेटा, सो मैप डेटा डॉट काउंट। तो इसमें 751 है, 551 है। तो देख रहे हो, तो ये सारे एक्शंस है, ये वैल्यू देते हैं हमें जनरली। सो दिस इज द होल थिंग कि हम लोग कैसे आरडीडीज पे वर्किंग कर रहे हैं, काम कैसे कर रहे हैं। तो लेट मी कंप्लीट, अभी उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं।
तो अब उसके बाद जो फाइनल फेज बचता है वो हमारा होता है रिड्यूस फेज। तो हम इसका नाम कुछ भी रख देते हैं, रिजल्ट, रिजल्ट रख देते हैं, रिजल्ट आरडीडी ना। नेमिंग कन्वेंशन आप पे डिपेंड करता है कि आप कुछ भी यूज करो। सो मैप डेटा पे, अब मैप क्या होता है, सारा का सारा इसमें ना डेटा की वैल्यू पेयर की फॉर्म में होता है। अभी तक आप देख रहे हो मैप के अंदर हमारा सारा डेटा कैसा की वैल्यू पेयर की फॉर्म में। तो अब हम इसमें एक और ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं जिसका नाम होता है रिड्यूस बाई की, रिड्यूस बाई की। तो ये की के बेसिस में डेटा को रिड्यूस करता है। तो इसके अंदर हम ऑपरेशन लगा रहे हैं लैम्डा। इसका मैं ऑपरेशन आपको बाद में समझाऊंगा कि ये कैसे काम कर रहा है। मोबाइल, ठीक है। तो यहाँ पे रिड्यूस बाई की क्या होता है, हर एक की के बेसिस में वो काउंटिंग स्टार्ट करेगा एग्रीगेट। जैसे टी एच ये एक की है और ये इसकी वैल्यू है, ये की है, ये इसकी वैल्यू है। तो अब ये की के करस्पॉन्डिंग जहां जहां दा आ रहा है, ये भी एक दा आ रहा है, तो ये इनको उठाएगा इस की को और इसके करस्पॉन्डिंग जितनी भी वैल्यूज है उनका सम करेगा। तो ये हमारा तीसरा फेज है। अगर इसका आउटपुट आप देखना चाहते हो, आप डायरेक्टली भी परफॉर्म कर सकते हो या तो किसी वैल्यू किसी पे स्टोर करके भी कर सकते हो। तो अगर आप देख रहे होगे तो हमारा फाइनली हमने यहाँ पे रिजल्ट फेज लगा है। तो अगर अब मैं इसको चेक करूं, आर एस रिजल्ट आर डी डी, इसमें अगर मैं कलेक्ट लगाऊं तो ये मेरे को बताएगा हर एक वर्ड की काउंटिंग बता देगा कितने टाइम्स आई। तो ये मेरे को कुछ एरर दे रहा है। एरर क्या दे रहा है, आई थिंक मैंने कुछ गड़बड़ी कर दी। अच्छा, ये बोटिंग फिर से आने लग गया क्या? एग्जैक्टली वन आवर रिलीज हुआ कि आपने यहाँ पे लेजी एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट देखा। जब मैंने यहाँ पे एंटर मारा तो उसने कोई एरर नहीं फेंकी, लेकिन जैसे ही मैंने उस पर एक्शन परफॉर्म किया तब एरर फेंकी। दिस इज व्हाट वी कॉल लेजी एवोल्यूशन। देखो सारे वर्ड की काउंटिंग है। गॉट इट। ये हमारा, मैंने वहां पे ब्रैकेट एक्स्ट्रा लगा दी। इसी को लेजी एवोल्यूशन भी कहा जाता है। ये सारे टॉपिक हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर पे भी। सो ये हमारा एक ओवरऑल प्रोग्राम बना जिसमें सिर्फ 4 लाइन का कोड लिखा और वी विल गेट आउटपुट, कि हमें हमारा आउटपुट मिल गया। तो अगर मैं इस कोड को सेव भी कर लूँ, लेट्स सपोज डेस्कटॉप में डाल देता हूँ, ये मेरा वर्ड काउंट का प्रोग्राम है, वर्ड काउंट। ठीक है, मैंने इसको सेव कर लिया। ठीक है, ये सारा का सारा कोड है और हमने रिजल्ट भी देख लिया। ये हमारा पूरा रिजल्ट इंटरेक्टिव मोड में ही काम कर रहे हैं। मैप रिड्यूस में हमें ऐसा मिलता नहीं था वहां पे लाइन बाय लाइन कोड को टेस्ट करे चेक करे। हम तो सीधा कोड ही रन करते थे वहां। तो सोचो कितना मतलब कितना टाइम बर्बाद हो रहा होता है। हमें पहले कोड लिखा, फिर हमने उसको रन किया, फिर डीबगिंग की, पता चला यहाँ पे हमने गड़बड़ी कर दी, और फिर हम उसको दोबारा कंपाइल करते हैं। तो कितना एफर्ट्स, कितना टाइम बर्बाद होता था। यहाँ पे आप लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करके टेस्ट करके, हाँ भैया मेरा कोड तो परफेक्ट है। फाइनली यू कैन ऑल्सो सेव द आउटपुट। अगर आप चाहो तो अपनी आरडीडी का आउटपुट सेव भी कर सकते हो, जैसे ये फाइनली आरडीडी है। तो सेव एज टेक्स्ट फाइल। तो आप अपना आउटपुट भी सेव कर सकते हो।
आउटपुट सेव भी कर सकते हो, सेव एज टेक्स्ट फाइल। तो यहाँ पे हम अपना आउटपुट सेव भी कर सकते हैं, आउटपुट। ठीक है, तो अब हम क्विट कर लेते हैं, इस सेशन से बाहर आ सकते हैं। मैं इस लाइन को लिख भी लेता हूँ। ठीक है, सो अब अगर हम अपने सेशन से बाहर आए, तो ls-ltr, तो हमारा एक फोल्डर बना होगा ये रिवाउट स्पार्क नाम से। तो हम इसके अंदर चेक कर सकते हैं cd आउट स्पार्क। क्या हो गया? आउटपुट। गाइस, am I audible? Because hello. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. So now here we can see that हमारी पार्ट फाइल बनी होंगी, देख रहे हो? दो पार्टीशन बने हुए, पार्ट फाइल बनी हुई है। तो वी कैन रीड द आउटपुट, हम इन पार्ट फाइल्स पे अपना आउटपुट रीड कर सकते हैं। स्टार मार लो, सारी पार्ट फाइल रीड कर ले। तो सारे वर्ड्स उनके काउंट्स बता रहा है कितने कितना है, देख रहे हो सारे वर्ड। तो हम लोगों ने कैसे लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट किया और फिर अपना प्रोग्राम बनाया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, साथ के साथ हमने एक डिजाइन भी किया कोड। लेकिन अब अगर मैं इन कोडों को रन करूंगा, जैसे ये मैंने एक कोड बनाया वर्ड काउंट का पूरा पाइस्पार्क में। अब मैं इस कोड को रन करता हूँ, ठीक है। अब चाहो तो पाइथन में, अब मेरे को सबसे पहले क्या चाहिए, मैं यहाँ पे भी रन कर सकता हूँ। मैं पहले अपलोड कर लेता हूँ ये कोड जो मैंने बनाया है। सो मेरा कोड था डेस्कटॉप में, ये था ना वर्ड काउंट। अब वहाँ पे प्रोडक्शन में ऐसा थोड़ी ना कि वहाँ पे लाइन बाय लाइन कोड को लिखेंगे। तो यहाँ एक कमांड होती है जिसके थ्रू आप अपने कोड को रन कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड स्पार्क सबमिट कमांड। स्पार्क सबमिट के थ्रू पहले देख लेते हैं कोड आया कि नहीं आया। यही था ना वर्ड काउंट डॉट पाई, तो vi करके एक बार देख लो अपने कोड, देख लेते हैं। ये हमारा कोड ना, हमने लाइन बाय यहाँ लोकल से फाइल रीड करेगा और फिर उसकी स्प्लिटिंग करेगा। तो अब देखते हैं इसमें क्या क्या एरर आते हैं और उसी के अकॉर्डिंग तुम अपना कोड डिजाइन करोगे। तो इसमें स्पार्क सबमिट कमांड होती है जिससे आप अपनी जॉब को सबमिट करते हो क्लस्टर में, स्पार्क सबमिट। और मेरा कोड है क्या, वर्ड काउंट डॉट। तो ये सबसे पहले, एनी गेस ये सबसे पहले क्या एरर फेंकेगा? एरर तो आनी है, क्या एरर फेंकेगा सर? पैकेज का एरर फेंकेगा सर। ब्रैकेट का एरर? पैकेज हमने इंपोर्ट नहीं किया ना। कौन सा पैकेज इंपोर्ट करना है? वर्ड काउंट डॉट पाई में हमने, मतलब कौन सा पैकेज इंपोर्ट करना है भाई? कहाँ गया? जो फंक्शंस यूज कर रहे हैं भाई। कौन से फंक्शंस? कौन सा एरर फेंकेगा सबसे पहले? तो लेट मी चेक। तो सबसे पहले एरर फेंकेगा, हाँ, SC इज नॉट डिफाइंड। ये है क्या SC? एग्जैक्टली रागनी, यू आर करेक्ट। तो हम इसको रन करके देखते हैं। तो ये हमारा चल रहा है। सबसे पहले उसने एरर फेंक दिया कि SC है क्या है, SC इज नॉट डिफाइंड। और जब तक हम इंटरेक्टिव मोड में थे तो हमें वहां एक सेशन मिला था ना स्पार्क का, जिसमें हम काम कर रहे थे। तो हमें सबसे पहले स्पार्क कॉन्टेक्स्ट डिफाइन करना होगा, समझ रहे हो? तो स्पार्क कॉन्टेक्स्ट कैसे डिफाइन करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। आप कहीं से भी यूज कर सकते हो, स्पार्क डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लो, ये बहुत फायदेमंद है। बहुत लोग इसे प्रेफर भी करते हैं स्पार्क डॉक्यूमेंटेशन। आप 3 का पढ़ लो या 2 का पढ़ लो, जहां से भी पढ़ना चाहते हो। आप यहाँ से RDDs पढ़ना चाहते हो, तो यहाँ पे तीनों टाइप में लैंग्वेजेस दी रहती हैं, देखो।
तो सबसे पहले आपको ये पैकेजेस इंपोर्ट करने होंगे जिनके थ्रू आपको स्पार्क कॉन्टेक्स्ट मिलेगा। तो ये पता है ये चीज करनी ही करनी होती है, कोई भी स्पार्क की एप्लीकेशन आपको डिजाइन करनी है तो ये चीज आपको लिखनी ही लिखनी है, समझ रहे हो। सबसे पहले ये 2 लाइन ये इंपोर्ट करने होंगे पैकेज, स्पार्क कॉन्टेक्स्ट org अपाचे स्पार्क कॉन्टेक्स्ट org स्पार्क कॉन्फ। आप पाइथन में लिख रहे हो या जावा में, कहीं से भी उठा सकते हो। अब सबसे पहले आपको कॉन्फ बनाना होता है, आप कॉन्फ बनाओ या ना बनाओ ये आप पे डिपेंड करता है। इसमें क्या होता है जनरली आप पास करते हो, आप अपनी एप्लीकेशन का क्या नाम रखना चाहते हो, आपका मास्टर क्या होगा, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप लिखना चाहते हो तो लिखो, नहीं लिखना चाहते हो तो नहीं लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाय डिफॉल्ट वो लोकल का ही उठाएगा आपका जो भी। तो यहाँ पे जैसे आप कॉन्फ डिफाइन करते हो तो आप स्पार्क कॉन्टेक्स्ट के अंदर अपना कॉन्फ पास कर सकते हो। तो ये चीज आपको करनी ही करनी है भाई किसी भी स्पार्क एप्लीकेशन में, किसी भी स्पार्क एप्लीकेशन में सब चीजें करनी है। और भी तरीके हैं, अगर आप एक स्पार्क का सिंपल सा वर्ड काउंट का प्रोग्राम देखोगे, स्पार्क वर्ड काउंट पाइथन, सो आप यहाँ पे देख रहे होगे इन लोगों ने ये पाइथन में आप लोगों ने पढ़ा होगा मेन फंक्शन ये सब बनाना। तो अभी जो मैंने आप लोगों को पैकेज इंपोर्ट कराया ना वो गलत करा दिए, वो एक्चुअली में पाइथन में ऐसे पैकेज इंपोर्ट नहीं होते हैं। आप अगर यहाँ पे देख रहे होगे ये पैकेज ऐसे इंपोर्ट हुए हैं पाइथन में। पाइथन में जनरली आप ऐसे इंपोर्ट करो तो बढ़िया रहेगा। ये रहा फ्रॉम पाइस्पार्क इंपोर्ट स्पार्क कॉन्टेक्स्ट एंड स्पार्क कॉन्टेक्स्ट। ये आपको लिखना ही लिखना होगा भाई हर बार, ठीक है। तो सबसे पहली लाइन है, और आई होप कि आप लोगों ने पाइथन अच्छे से लर्न की हो। तो पाइथन को आपको आना भी चाहिए कि कमेंट्स प्रॉपरली पास करो जिससे लोगों को पता चले किस चीज़ का प्रोग्राम है। आप अपने मैसेज दे सकते हो, वर्ड काउंट प्रोग्राम बाय पंकज, डेट वेट सब कुछ मेंशन है। आई होप कि आप लोगों ने पाइथन अच्छे से लर्न किया। तो हमने सबसे पहले पैकेज इंपोर्ट किया, ठीक है। पैकेज इंपोर्ट करने के बाद हमारा सेकंड काम है कि स्पार्क कॉन्टेक्स्ट लॉन्च करना। तो हम उसमें कुछ पैरामीटर पास कर रहे हैं, लोकल और अपनी एप्लीकेशन का नाम पास कर रहे हैं। तो आपको कॉन्फ बनाने की जरूरत नहीं है, जैसे बोला है ना, आप चाहो तो कॉन्फ बनाओ या ना बनाओ ये आप पे डिपेंड करता है। जैसे ये लाइन आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है, जैसे हमने ये 2 लाइनें की थी ना, तो आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्टली ऐसे भी काम कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पार्क कॉन्फ में ये लोग एप्लीकेशन का नाम दे रहे थे और लोकल में चलाना चाह रहे हैं। हम लोगों ने यहीं पे स्पार्क कॉन्टेक्स्ट लिखा, उसमें हमने लोकल पास कर दिया और अपनी एप्लीकेशन का नाम पास कर दिया। देख रहे हो, अब हमें मिल गया स्पार्क कॉन्टेक्स्ट, स्पार्क कॉन्टेक्स्ट मिल गया हमें। तो हमारा अब काम होगा, अब मैं इस कोड को फिर से अपलोड करता हूँ एक बार। सो वर्ड काउंट डॉट और ये वाला बन गया है, इसे हम मॉडिफाई कर लें। ठीक है, ये हमारा कोड है, इसको हम सिंपल सा रख लेते हैं, वर्ड काउंट मॉडी। ठीक है, तो ये हमारा कोड बन गया, इसको एक बार देख लेते हैं वी करके। ये है ना हमारा
तो हमारा ये कमेंटेड है, वर्ड काउंट प्रोग्राम कमेंटेड, हमने इंपोर्ट किया और ये स्पार्क कॉन्टेक्स्ट बनाया। ठीक है, अब इसको रन कर रहे हैं दोबारा, तो अब क्या एरर देगा, कोई बताएगा? सर नहीं सेम आइडिया? टेक्स्ट फाइल में सेव होने पे एरर नहीं देगा? क्या बोल रहे हो, क्या एरर देगा ये? सर आउटपुट जो सेव करेंगे वो सेम फाइल में सेव होगा? एग्जैक्टली, आउटपुट ऑलरेडी एग्जिस्ट है ना। तो जैसे मैंने बताया था कि तो अगर इसको रन करेंगे, स्पार्क की स्पेलिंग गलत लिख दी, तो आउटपुट ऑलरेडी अब यहाँ पे आ गया ना, डायरेक्टरी ऑलरेडी, किसका एरर दिया इसने? अच्छा ये कमेंट नहीं हुआ है हमारा ढंग से लाइनें, तो vi करके तो यहाँ ये जावा में ये लाइन, ये कमेंट ऐसे जावा में यूज किए जाते हैं, जो यहाँ पे पाइथन में हैश का यूज किया जाता है सिंगल लाइन कमेंट के लिए। ठीक है, मेरे को जावा की भी आदत पड़ी हुई है, स्काला की भी पड़ी हुई है, तो ठीक है। एस्केप रन करते हैं, तो ये अब हमें एरर किस चीज का देता है, लेट मी चेक। ये रन हुआ, सो वी कैन चेक फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट एक्सपेक्शन, आउटपुट नाम से बनी हुई है ना, तो हम लोग इसको मॉडिफाई करते हैं। तो इसमें हम लोग कोई नई डायरेक्टरी का नाम दे सकते हैं, इसका नाम हम रख देते हैं spark1, है ना, इस नाम से बनाए। सो w, अब रन करके देखते हैं, तो अभी हमारे स्पार्क का पूरा कोड चल रहा है, खत्म। तो देखो इसने एक डायरेक्टरी और बना दी आउटपुट spark1 से। लेट मी चेक आउटपुट इसके अंदर, देखते हैं क्या है आउटपुट स्पार्क। अरे यार, आउटपुट spark1 है ना, इसमें हमारा पूरा डेटा, एक ही पार्ट फाइल बना है इसमें, है ना, यार स्टार लगा के इसमें हमारा सारा आउटपुट आ गया। गॉट इट? तो ये सारा का सारा काम हमने किया है यहाँ पे, और ऐसे हम अपने कोड में हर एक स्टेज में भी आउटपुट चेक कर लेते। तो ये वही था जो हमने इंटरेक्टिव मोड में किया था, और हमारा फाइनली तो प्रोडक्शन में ये थोड़ी ना लाइन बाय लाइन कोड है, वहाँ कोड बनाया उसको एग्जीक्यूट कर दिया। अब आप अपना रिजल्ट भी हर एक स्टेज के बाद अगर रिजल्ट भी चेक करना चाहते हो तो आप पे डिपेंड करता है, आप एक्शन प्रिंट करवा लो। जैसे कि यहाँ पे प्रिंट, यहाँ पे बताए मेरा इस स्टेज में इनपुट अंडरस्कोर RDD, इस पर मैं कलेक्ट लगा लेता हूँ। आउटपुट भी देखना चाहोगे हर स्टेज के बाद देख सकते हो, लेकिन एक्शन को अवॉइड करना। तो आप कुछ क्वेश्चंस लिखते जाओ, और नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों से पूछूंगा कि ये चीजें क्यों हो रही है, और आज आपको प्रैक्टिकल भी करना है कुछ, ये तो करोगे ही करोगे रन, साथ में कुछ प्रैक्टिकल भी परफॉर्म करना है। RDD.collect, तो आप ये एक्स्ट्रा लगा सकते हो, लेकिन एक्शन को अवॉइड करना होता है। क्यों करना होता है ये आप लोग मेरे को बताओ। तो प्रिंट map underscore data dot collect, साथ के साथ मेरे को कंसोल में भी रिजल्ट दिखेगा, रिजल्ट सेव भी होगा आपका, ऐसा कोई नहीं है, लेकिन आपको कंसोल में भी रिजल्ट दिखेगा।
अभी मैं रन करता हूँ अपना प्रोग्राम। अरे यार, इसमें कोई एक्शन ही परफॉर्म नहीं किया। ये तो तुरंत सिंटेक्स एरर सब कुछ दे देता है पाइथन। अबे यार, क्यों बार बार कोड एक ही खोल दिया मैंने। तो हमें यहाँ पे अरे अब क्या गड़बड़ी कर दी यार। डायरेक्टरी नहीं। Extra bracket. You have the int yes. गाइस, डिबगिंग जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि प्रोग्रामिंग ये सब सिखाना इजी है, लेकिन डिबगिंग करना बहुत ही आसान है। तो अगर आप देखोगे हर स्टेज में इसने, देखो पहले यहाँ पे दिखा रहा है, देखो पहले इसने सबसे पहले फाइल को रीड किया, ये सारा हमारी फाइल रीड की। इनके बारे में पढ़ना है, डैक शेड्यूलर ये सब क्या है। आर्किटेक्चर आज मिला नहीं मौका, कल हम आर्किटेक्चर डिस्कस करेंगे। फिर उसने स्प्लिटिंग की सारे डेटा की, फिर सारे डेटा की स्प्लिटिंग के बाद उसने फिर उसकी मैपिंग की, गॉट इट। और उसके बाद उसने उसकी मैपिंग की, फिर सारे आउटपुट आया। फाइनली उसने फिर रिजल्ट हमारा सेव कर दिया था, यहीं पे लिखा होगा कहीं। और फाइनली पता है, ये अपने आप ही ना स्पार्क कॉन्टेक्स्ट को क्लोज कर देता है। इसमें ये भी एक फीचर है। सो दिस इज आवर ओवरऑल प्रोग्राम। सो हमारा ये कैसे काम किया, ये सारा का सारा हमारा ऐसे काम किया। आगे का हम लोग कल पढ़ेंगे। सो राइट नाउ वी हैव अ 9 more minutes. So if you guys have any query, any doubt, any question, let me know. Simran, Abhishek, Rachit, Lavesh, Sunny और समझ में आया? हाँ सर। सर समझ में तो आया, लेकिन थोड़ा कमांड से एक बार देखने पड़ेंगे, मतलब जो रन अरे हुए। वो तो भाई अभी की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, समझ में तो आ गया। थोड़ा समझ में आया है। कुछ ऐसा है कि लग रहा है कि सर के ऊपर से जा रहा है यार, अलग ही बता रहे हो कुछ। मतलब नहीं, यार ऐसा तो बहुत नहीं है। लोगों को ना स्पून फीडिंग करवा रहा हूँ, ऐसे कोई भी नहीं पढ़ाएगा तुम लोगों को। मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों का बेसिक क्लियर हो जाए, लेकिन यार इसमें हैंड्स ऑन करो यार। मेरे को हैंड्स ऑन करके मेरे को लर्न नहीं करना है सब चीजें। ओके, सो थैंक यू। आई एम गोना स्टॉप दिस सेशन एंड प्लीज वॉच this video again and again. Okay, so I'm gonna stop this one. Bye bye. Have a good day, everyone. बाय सर। Thank you sir. Oh, just wait. I'm giving you some homework here.